Hello everybody. I am Mahesh Kumar Patidar, teacher of English language. Today we will study past of model. In the past of model we have to use third form the verb. Yesterday we completed model can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, must, need, dare. Today we are completing 10 past of model. So first we will study could have, may have, might have, will have, would have, shall have, should have, ought to have, must have, need have. So yes, you have seen that have is added in all 10. So we have to use third form of the verb. While we are adding have with modal, we have to use थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. कहने का मतलब ये है कि जब भी हम पास्ट ऑफ मॉडल का यूज करेंगे जिसमें कुड है उसके साथ हैव ऐड किया है, मे के साथ भी हैव ऐड किया है, माइट के साथ भी हैव ऐड किया है, सभी के साथ हमने हैव ऐड किया है, तो ऐड करने के बाद एडिड होने के बाद उसमें उससे जोड़ने के बाद उसमें थर्ड फॉर्म लग जाता है. तो आप ये याद रखें कि वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. मतलब सीधे सीधे आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है सभी के साथ. ओके, so I know that you understood it properly that we have to use third form of the verb whenever you use have in your all grammar. So you can find that we have to use third form of the verb. So it is very easy for us that we have to use third form of the verb and we will enjoy a lot because of it is very short trick or technique that while using have we have to use third form directly. So there will be no need to think about the verb. So just take only third form of the verb. So first word is could have. So we are studying first could have. Hindi meaning is सकता था. Could have. Hindi meaning is सकता था. You could have completed your work. You could have completed your work. मतलब हमने यूज किया है कि कुड हैव का यूज किया है. हिंदी मीनिंग सकता था आ गया, इसके साथ यू लिया है सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट यू के बाद हमने इसका मॉडल का पास्ट ऑफ मॉडल लिया है कुड हैव, और कुड हैव के बाद हमें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आना है तो हमने लिया वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद योर वर्ब ऑब्जेक्ट लिया है. तो यू कुड हैव कंप्लीटेड योर वर्क. ये एक एग्जांपल हुआ. अब हमें इसके 10 सेंटेंसेस बनाने हैं. तो कम she could have come in the class on time. Attended, she could have attended the class. Written, she could have written a story. Spoken, she could have spoken in English. Discussed, she could have discussed with her friends. हम वर्ब क्यों पहले बोल रहे हैं? वर्ब हमने इसलिए पहले बोल रहे हैं कि हमने पहले भी बताया कि फर्स्ट आप वर्ब माइंड में लीजिए. जब आप वर्ब माइंड में ले लेंगे तो आप इमीडिएटली सेंटेंसेस बना पाएंगे. इसीलिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ले रहे हैं. जस्ट एग्जांपल आपसे बोलते हैं आपके रिटर्न, आप यूज कीजिए रिटर्न वर्ड को. तो जब रिटर्न इज द थर्ड फॉर्म, रिटर्न जो है आपकी थर्ड फॉर्म है, आप उसको जब सेंटेंस बनाएंगे क्या होगा? शी कुड हैव रिटन अ स्टोरी. प्लेड, she could have played cricket. Come, she could have come in the class on time. Attended, she could have attended the class. Spoken, she could have spoken English. Okay, discussed, she could have discussed with her friends. Okay, इसके बाद बहुत सारी वर्ब देखेंगे. Sung, she could have sung a song. Appeared, she could have appeared at exam. Okay, given, she could have given money. Paid, she could have paid money. Followed, she could have followed the traffic rules. Or ridden, she could have ridden a bike or she could have ridden a scooty. Driven, he could have driven a car. तो इसी तरह से आपने देखा कि हमने इतने सेंटेंसेस के बनाए. तो हमने इजीली और आपके सामने बनाना जस्ट अभी. We are able to frame a lot of sentences using could have. Why? Because of that, we are taking third form of the verb in our mind first. Taking third form of the verb in our mind, we are able to frame sentences easily. Now we have to make 4 sentences of could have. 4 sentences means simple, negative, interrogative, negative. Yes, we can make 4 sentences of these also. means सारे helping verbs के जो भी रहेगा उसका 1 के 4 तो बनता ही है.
तो you will have to make 4 of each definitely. If you will practice a lot, so after some time, whenever you will start to speak before somebody, there will be no problem for you for speaking, and you will be fluent. So there will be no need to take tension that time. So right now you must try to practice a lot, because practice will make you an expert person. So start. He could have played cricket. He could have played cricket. नेगेटिव होगा. He couldn't. could में क्या होगा? नॉट लग जाएगा. तो could not भी बोल सकते हैं और couldn't भी बोल सकते हैं. He couldn't have played cricket. फिर इंट्रोगेटिव में could आगे ले लीजिए, तो could he have played cricket, और couldn't में ऐसा कैसे couldn't आगे ले लीजिए, तो couldn't he have played cricket. अब इसको बोलते हैं he could have played cricket. He couldn't have played cricket. Could he have played cricket? Couldn't he have played cricket? तो इस तरह से हमने देखा could have में हमने किया है कि could have का यूज करते हैं, किस सेंस में यूज करेंगे. could have के बाद आता है आपका may have. may have भी हिंदी मीनिंग सेम में सकता था, लेकिन हमने may में पढ़ा कि इसमें लेस पॉसिबिलिटीज होती है, परमिशन के लिए यूज होता है, मोर पोलाइटली वर्ड्स वर्ड को यूज होता है, और जहाँ पे 100% पावर से कहते हैं वहाँ कुड हैव में होता है, लेकिन इसमें पोलाइटली होता है, 50-50 श्योरिटी होती है. और आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं जब 100% श्योरिटी होती है तो आपको कुड हैव यूज करना है. लेकिन जब 100% श्योरिटी आपके पास नहीं है कि वो 100% कर सकता, हो सकता है 50, 60, 70% हो, तो उस समय आप मे हैव का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शायद ही वर्ड जुड़ता है. और ठीक है, माइट में भी शायद ही जुड़ता है, तो 50 to 60% पॉसिबिलिटीज होती है, तो आप मे हैव का यूज करेंगे. और जब बहुत कम संभावना 10 to 20% पॉसिबिलिटीज होती है, तो आप माइट हैव का यूज करें. क्लियर है? तो अब इसमें देखिए तो हिंदी मीनिंग क्या हुआ? मे हैव. मे हैव का हिंदी मीनिंग हो गया सकता था. सेंटेंस देखिए, दे मे हैव कॉट द ट्रेन. वो ट्रेन पकड़ सकते थे. तो ये आपका हुआ आपका पास्ट. हैव लगा है, हिंदी मीनिंग था है सकता था. सकता था मीन्स पास्ट हो गया. अब इसके भी सेंटेंसेस 10 बनाने हैं. तो देखिए, ही मे हैव कॉट द ट्रेन. वो ट्रेन पकड़ सकता था. He may have purchased a ticket. He may have paid amount. He may have hired a taxi. He may have paid fare. He may have sat in the train. He may have reached Delhi. He may have attended the meeting. And he may have asked a lot of questions from interviewers. Clear? तो आपने देखा कि हमने फास्ट सेंटेंसेस के भी बनाए. तो आपको यदि इस टाइप से फास्ट सेंटेंसेस बनाना है, इफ यू वांट टू मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इमीडिएटली, so you must take verb first in your mind. Taking verbs, you will be able, you will feel comfortable and you will be able to frame sentences easily. So take verbs in your mind. हम इसके भी 4 बनाएंगे वही वाले. He may have caught the train. नेगेटिव क्या होगा? He meant. He meant have caught the train. मेरे साथ बोलिए आप, तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आप स्पीकिंग करना चाहते हैं. I know that you want to be a best speaker, so you must start to do practice with me, and you must start to speak with me, so you will be able to speak on it. You will get habit how to speak continuously and perfectly. So just try to speak with me. He may have caught the train. He meant have caught the train. may आगे ले लीजिए, may he have caught the train, और meant आगे ले लीजिए, वही may में नॉट लग जाएगा तो meant हो जाएगा. कल हमने वीडियो में पढ़ा था कि may का meant होता है. वो सारी चीजें हमने कल स्टडी लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली है, इसीलिए हम आज इसको सीधा डायरेक्ट ले रहे हैं. इसलिए डायरेक्ट ले रहे हैं कि कल हमने उसकी डीप स्टडी कर ली है कि may का meant बनता है, इसलिए हम डायरेक्ट ले रहे हैं. तो he may have caught the train. He meant have caught the train. मैं आगे ले लीजिए, may he have caught the train. meant he have caught the train. He may have caught the train. He meant have caught the train. May he have caught the train, or meant he have caught the train. He may have attended the meeting. He meant have attended the meeting. May he have attended the meeting, or meant he have attended the मीटिंग. तो इस तरह से देखा कि 4 सेंटेंसेस भी बनेंगे, हमने बनाए हैं और आगे बनेंगे भी. अब इसके बाद होता है माइट है.
माइट हम पहले ही का बोल चुके हैं कि ये भी मीनिंग सकता था आएगा, मोर पोलाइटली वर्ड को डिनोट करेगा, शायद ही वो काम हो सकता है, मतलब बहुत कम ही चांसेस है, तो हम माइट हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस जो बना है कि जॉन माइट हैव गॉन टू द मूवी यस्टरडे, मतलब वो शायद ही कल मूवी जा सकता था, तो ये लेंगे जॉन माइट हैव गॉन टू द मूवी यस्टरडे। अब इसके साथ इसी के 10 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें वही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म पहले लेते हैं कि जॉन माइट हैव गॉन टू द मूवी यस्टरडे, ही माइट हैव कॉल्ड हिज फ्रेंड्स माइट हैव गॉन टू द मूवी विथ हिम, he might have purchased a ticket for all, he might have paid money for all tickets, he might have collected all the tickets, he might have entered the hall, he might have watched a movie, he might have enjoyed there, and he might have returned to home on time. Clear? तो इसी प्रकार से देखा कि इजीली बन जाता है सेंटेंसेस, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। फर्स्ट आप एक क्रिएट कीजिए कि आपको किससे रिलेटेड, यहाँ पे जो रिलेटेड हमने बनाया सेंटेंस वो था मूवी के, मतलब हमने मूवी टॉपिक लिया, मूवी को एक एज अ बेस बनाया, हमने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है, तो मूवी से रिलेटेड हमने सोचा कि सारे सेंटेंसेस मूवी से रिलेटेड क्रिएट करते हैं, तो इजीली हमने उससे रिलेटेड थर्ड फॉर्म उठाते गए और रिलेटेड थर्ड फॉर्म उठा के सेंटेंसेस क्रिएट किए। तो you will be able to make sentences. First you have to take, I'm telling again, third form of the verb first in your mind. Okay? अब अगला लेते हैं, आपका हो गया, इसके बाद होता है would have। would have को समझना होगा। कल भी हमने बताया कि would have सजेशंस के लिए भी होता है, पास्ट ऑफ विल भी होता है। would have एक बहुत अलग होता है सिस्टम इसका। would have को थोड़ा सा समझ ले, ज्यादा डीप में समझ ले। वुड हैव का मतलब होता है होता, जैसे उसने यदि कार खरीदी होती तो हम उसमें बैठे होते, यदि वो विदेश गया होता तो उसने वहां पढ़ाई की होती, यदि उसने वहां पढ़ाई की होती तो वह वहां जॉब किया होता। और इसी तरह से हम भी बहुत सारे तो बोलते हैं, जब लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं 2 घंटे पहले आप आए होते तो आपने वो मूवी देखी होती, आप 1 घंटे पहले आए होते तो आपने क्लास अटेंड की होती, यदि आपने टिकट खरीदा होता तो आप इसको जीत गए होते। तो ये जो होता है पर वो हुआ नहीं और न होगा, क्योंकि ये सब पास्ट है। पास्ट में जो हो गया और जिसका हम पछतावा करना चाह रहे हैं, जो हो नहीं सकता उसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे हैव में। ठीक है, अब तो यहाँ पे देखें बुरा, अब देखिए यहाँ पे होता हो गया इफ ही हैड सीन द एडवर्टाइजमेंट, यदि उसने एडवर्टाइजमेंट देखा होता इन टाइम। ये जो है पहला वाला सेंटेंस, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है। किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। और पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने पता है कि थर्ड फॉर्म आती है, तो हमने यहाँ पे ही लगाया, ही के बाद हैड लिया, हैड के बाद सीन लिया, सीन के बाद आपका नाउन हो गया। लेकिन इसमें सेंटेंसेस इफ लगा है, तो इफ जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस है, कंडीशन बताता है कि यस ये ऐसा होता तो होता, मतलब यदि कंडीशन ऐसी नहीं हुई, इसलिए पहला वाला कार्य ही नहीं हुआ तो दूसरा वाला कार्य नहीं हो सकता, ये वाली कंडीशन के लिए आपको वुड हैव यूज करना पड़ेगा। तो इसमें देखें कि इफ ही हैड सीन द एडवर्टाइजमेंट इन टाइम, मतलब उसने एडवर्टाइजमेंट यदि समय पे देखा होता और उसे देखा नहीं, तो क्या सेकंड काम हो सकता है? नहीं, तो नहीं हो सकता। इसीलिए क्या आएगा, ही वुड हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, मतलब उसने जॉब के लिए अप्लाइड किया होता, मतलब उसने किया नहीं। तो ये सेंटेंसेस आपको ध्यान रखना है कि इस सब से सेंटेंसेस बनेंगे। मुझे पता है कि इस टाइप के सेंटेंसेस बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि आप लोगों का काम इस टाइप से बोलने में नहीं पड़ता, but it is my duty to teach you in depth and I will have to provide you deep knowledge of English language. That's why I started to teach you in deep and detail. So I am taking each and every point of grammar, vocab, pronunciation, body language, how to get fluency by reading books also I will teach you. Means you will be taught everything related or connected with English language.
because I promised, I decided it, I determined it to do it. So I will do it definitely. I will make a series of 100 chapters, and I made it. So I will teach you everything in detail. So we have to take lot of examples or more examples of these sentences. These type of sentences. Again, we are taking new sentences. If he had, हम यहाँ पे चेंज करेंगे. चेंज इसलिए करेंगे कि हम एक सेंटेंस नहीं करना चाहते, हम 10 सेंटेंसेस बनाएंगे. 10 सेंटेंसेस के बेस पे हम 1000 सेंटेंसेस बनाएंगे. मीन्स हमें 1000 सेंटेंसेस बनाना है, इसीलिए हमें इसका बेस एक स्टार्ट करते हैं. पहला सेंटेंस का रूल उठाएंगे कि परफेक्ट टेंस लेंगे, पास्ट परफेक्ट, इसके बाद यहां वुड हैव लेंगे. मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लेना है पहले, और यहाँ पे वुड हैव लेके सेंटेंसेस बना देंगे. तो अब यहां पे लेते हैं कि इफ ही हैड परचेस्ड अ कार, ही वुड हैव या आई वुड हैव ड्रिवन इट. तो इफ ही हैड परचेस्ड अ कार, आई वुड हैव ड्रिवन इट. अगला देखें, यदि उसने टिकट खरीदा होता, लॉटरी का टिकट खरीदा होता, तो वह जीत गया होता. कैसे बनाएंगे इसको, इफ ही हैड परचेस्ड अ टिकट ऑफ लॉटरी, ही वुड हैव वन इट. यदि आपने कंप्यूटर चलाया खरीदा होता तो आपने उसको चलाया होता. इफ यू हैड परचेस्ड अ कंप्यूटर, यू वुड हैव ऑपरेटेड इट. यदि मोना विदेश गई होती तो उसने वहां पढ़ाई की होती. इफ मोना हैड gone to the foreign country, she would have studied there. यदि आपने उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो वह अच्छे मार्क्स लाया होता. If he had studied well, he would have gotten good marks या highest marks. ठीक है, क्लियर है. तो इस सब से हमें, यदि उसने रवि से मिला होता तो रवि ने उसको पैसे दे दिए होते. इफ ही हैड मेट विथ रवि, ही वुड हैव या रवि वुड हैव पेड हिम मनी. तो इसी तरह से यदि उसने बिजनेस स्टार्ट किया होता तो उसने बहुत कमाया होता. इफ ही हैड स्टार्टेड बिजनेस, ही वुड हैव अर्न्ड लॉट ऑफ मनी. तो हमने देखा कुछ नहीं किया, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लेना है. मतलब इसको दो फॉर्म में बना लीजिए. फर्स्ट फॉर्म बना लीजिए कि पास्ट पर हैड प्लस V3 लेना है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है, और वुड हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है. मतलब हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म. इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने से ये होता होता वाले सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे, जो कि हमारे ख्वाब होते हैं पास्ट के. यहाँ ऐसा होता ऐसा होता ऐसा होता, पर हुआ नहीं. वो सारे के सारे सेंटेंसेस आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे. क्लियर है. अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. शैल हैव. शैल हैव जो है वो आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ा होगा. शैल हैव का जो यूज है वो आई और वी के साथ यूज होता है. तो शैल हैव का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो शैल हैव का यहां बना है, वी शैल हैव स्टडीड पास्ट ऑफ मॉडल बाय 6 PM. 6 बजे तक हम पढ़ चुके होंगे. They will have completed their work. They will have attended the meeting. They will have select a candidate. Candidate will have will have completed his form. He will have deposited his form, and interviewers will have collected his form. तो इस तरह से हमने देखा कि ये भी इजी बन गया. मतलब यदि आपने एक थीम पकड़ ली कि हमें इस थीम पे कंटिन्यूसली बोलना है, तो 5 to सेंटेंसेस आप इजीली बना सकते हो, और उन 10 सेंटेंसेस के आधार पे 1000 सेंटेंसेस भी बना सकते हो. क्यों? क्योंकि मेन जो बेस है वो तो वही रहेगा ना. मेन जो बेस है आपका शैल हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म लेना, ये बेस तो नहीं बदलेगा. तो शैल हैव के साथ यू विल हैव टू टेक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. Taking third form the verb, you can frame sentences easily. So you can change the verbs and you can frame sentences. I know that you are facing the problem of verbs. For that, I am trying my best
I am taking the series of synonyms and antonyms. Means I will try and I am trying to take all the verbs, means lot of verbs. हम ये ट्राई कर रहे हैं कि कम से कम 5 to 10,000 वर्ब्स आपको हम इस कंप्लीट सीरीज में कंप्लीट करवा दें. मतलब हम जो ले रहे हैं कि सारी वर्ब्स जो ले रहे हैं वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के आधार पे हम ट्राई ये कर रहे हैं और डेफिनेटली हमने तैयार की है. उसके आधार पे हम एक एक स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स में वर्ब लेते जाएंगे और एक 5 to 10,000 वर्ब्स हम आपको इस कंप्लीट सीरीज में कंप्लीट करवा देंगे. सिर्फ आपको ये करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. मतलब ये है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए. जिल फ्लुएंसी के नाम से पूरा है चैनल. इसमें हम आपके लिए पूरी वर्ब्स की जो सीरीज है कम से कम 10,000 वर्ब्स का हमने कवर किया है कि वो सारी की सारी आपको स्टेप बाय स्टेप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के आधार पे हम आपको पढ़ाते जाएंगे. तो इस आधार पे आप देखेंगे कि सारी चीजें आपने कंप्लीट कर ली. 100 क्लासेस में आप देखेंगे कि आप मोस्ट ऑफ दी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं. तो आपको क्या करना है कि 100 क्लासेस हमें देनी है, मतलब आपको 100 वीडियोस देखना है कम से कम इसके, और आप ट्राई कीजिए कि आप कंटिन्यूस को वॉच करें. क्लियर है. अब इसका नेक्स्ट है कि शुड हैव चाहिए था. हमने शुड पढ़ा कि चाहिए मोरल ड्यूटी के मतलब इसको एडवाइस देने के काम आता है. तो हमने यह देखा कि यहाँ पे भी वही काम आएगा, बट शुड हैव मतलब चाहिए था हो जाएगा. विजय शुड हैव गोन टू द पोस्ट ऑफिस दिस मॉर्निंग. इस मॉर्निंग में उसको विजय को पोस्ट ऑफिस जाना चाहिए था. अब यहाँ पे भी वही गोन आया है, मतलब वही थर्ड फॉर्म वाला फंडा है. सीधी सी बात. तो सब में क्या करना है कि थर्ड फॉर्म लेना है, और थर्ड फॉर्म देके जो सेंस आप देना चाहते हैं वो सेंस आप दे सकते हैं. मतलब आपको कुछ नहीं करना है. यदि वेरी सिंपल पॉइंट बताया जाए तो वेरी सिंपल पॉइंट ये है कि आपको इनके मीनिंग्स पता होना चाहिए. क्या इनके मीनिंग्स पता होना चाहिए कि इनके मीनिंग्स क्या है. तो मीनिंग जैसे कुड हैव का मतलब पता होना चाहिए, मे हैव का एग्जैक्ट हिंदी में पता होना चाहिए, और ये यूज कैसे आएंगे ये पता होना चाहिए. इसके बाद आप सेंटेंसेस तो इजीली बना लेंगे, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि वी हैव टू टेक थर्ड फॉर्म द वर्ब इन माइंड. थर्ड फॉर्म लेके सब में सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म आ रहा था. थर्ड फॉर्म इजीली लेके इजीली सेंटेंस बना पाएंगे. तो ये आपके हाथ में आ जाएगा कि आप जो सेंटेंस बोलेंगे उसमें आप चेंज भी कर पाएंगे, बोल पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे. मतलब जो भी आप चाहेंगे वो सबके सेंटेंसेस आप इजीली बना पाएंगे और इजीली समझ पाएंगे. तो इसके देखते हैं. फिर विजय शुड हैव गॉन टू द ऑफिस हो गया. इसी में भी वही है शुड हैव. अब ऑफिस आपका थीम पकड़ लीजिए, पोस्ट ऑफिस. अब इसको थीम को पकड़ लीजिए पोस्ट ऑफिस. तो विजय शुड हैव गॉन टू द पोस्ट ऑफिस. His father should have told him. He should have collected the letter. He should have posted it. He should have returned to home. He should have confirmed it. And he should have discussed with his father. हमने देखा फादर से कुछ नहीं किया, थीम पकड़ी पोस्ट ऑफिस और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बना दी. तो आपको भी सबसे सेंटेंसेस बनाने हैं. शुड हैव के बाद आता है आपका मस्ट हैव. चाहिए ही था. मस्ट हैव चाहिए ही था. ही मस्ट हैव गॉन टू स्लीप. उसको सोना ही चाहिए था. अब आप इससे रिलेटेड स्लीप से आप इसको पकड़ लीजिए, स्लीप सोना. अब सोने से रिलेटेड आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए. मतलब ये है कि हम ये नहीं बोलना चाहते कि आप एक ही तरह के अलग अलग सेंटेंसेस बनाएं. वी हैव टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग मस्ट हैव. हम अलग अलग सेंटेंसेस सभी में ले रहे हैं ताकि आपको ये फंडा हो जाए कि कम से कम 50 to 100 सेंटेंसेस अभी आप हमारे साथ प्रैक्टिस करके बना लें. 50 to 100 सेंटेंसेस मोर देन इनफ होते हैं यदि आप उस पर प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आप अपना माइंड लगा के वर्ब चेंज करते जाइए और सेंटेंस बनाते जाइए. तो स्लिप के लिए ले रहे हैं. स्लिप इसका जैसे रूट वर्ड ले लिया हमने कि बेस बना लिया स्लिप. ही मस्ट हैव टेकन या हैड फूड या डिनर ऑन टाइम. तो ही मस्ट हैव टेकन डिनर ऑन टाइम. ही मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क. ही मस्टंट हैव वॉच्ड टीवी टिल लेट नाइट. He must have switched off the light and he must have slept. So he must have slept. क्लियर है. तो इस तरह से हमने उसको स्लिप पे लिया.
his father must have attended him, or discussed with him, or talked with him. His father must have confirmed it, and his father must have advised him to sleep on time. क्लियर? तो इसमें हमने लिया ये सबसे मस्ट ले लिया. मस्ट के बाद आता ought to. ought to have चाहिए था, ये भी हमने क्या कल कहा था कि एडवाइस के लिए, सजेशंस के लिए, ऑफर के लिए यूज होता है. तो सेम इसमें आपको ये देखना है कि ought के बाद to आएगा. इसको याद रखें, नेगेटिव में oughtn't लिया है यहाँ पे, तो he oughtn't to have, वही है हो गया. बीन आपका थर्ड फॉर्म हो गया यहाँ पे. ड्राइविंग एज आपका नाउन फॉर्म में है सो फास्ट. ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस बन गया ought to have. ought to have मतलब चाहिए था. तो he oughtn't to have been driving so fast मतलब उसको इतनी तेज गति से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी. तो आपको ought to का है, ought to है. अब यहाँ पे थीम क्या पड़ा? ड्राइविंग कार. ठीक है, ought to लेना है, ought to have. अब कार से रिलेटेड या ड्राइविंग से रिलेटेड रख लीजिए सेंटेंसेस. तो आपको इजीली बनाने में, मतलब सेंटेंसेस हम इजी बनाएंगे क्योंकि हमारे पास एक आइडिया आता है कि हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस. तो वी गॉट आइडिया अबाउट ड्राइविंग. ही ought to have kept driving license. He ought to have followed the traffic rules. He ought to have driven a car slowly. He ought to have stopped his car on red light. Okay. He oughtn't to have jumped red light. Or he ought to have kept all the securities and safety of for driving. He ought to have completed his work. Or he ought to have stopped his car on platform. Or he ought to have parked his car on right place or in parking. Or he ought to have returned home on time. क्लियर है? तो हमने ought to have लिया. ought to have के बाद होता है need have. need have का मतलब आवश्यकता पड़ी थी, ये भी पास्ट है. he need have, need के साथ have आएगा, हमने देखा सब में है आएगा. अटेंडेड द मीटिंग. ही नीड हैव अटेंडेड द मीटिंग. अब यहाँ पे आपका ऑप्शन है मीटिंग. मीटिंग को एक दिमाग में रख लीजिए कि मीटिंग से रिलेटेड सारे बनाने हैं. तो ही नीड हैव अटेंडेड द मीटिंग. ही नीड हैव अटेंडेड द मीटिंग. हिज बॉस नीड हैव कंफर्म द टाइम ऑफ मीटिंग. हिज बॉस need have arranged the meeting, and he need have performed very well with there. He need have prepared all the documents. He need have set all the documents in a proper file. He need have given that file to his boss, and he need have signed on the some form. He need have taken the salary properly. Boss need have given his salary on time. तो हमने देखा कि इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस हमने इजीली बना लिए हैं और हमने इस पर प्रैक्टिस की है. अब आप चाहें तो इसके पहले सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके बाद एक के 4 बनाने की भी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं. अब यदि हम फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस पे जाना चाहिए. तो हम ये सोच रहे हैं कि एक बार इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो पहले ही सारे वर्ड्स याद कर लेते हैं. पहला वर्ड क्या है? कुड हैव, मे हैव, माइट हैव. कुड हैव, मे हैव, माइट हैव. विल हैव, वुड हैव, विल हैव, वुड हैव, शैल हैव, शुड हैव, ऑट टू हैव, मस्ट हैव, नीड हैव. क्लियर? एक बार आप बोले हमारे साथ. चलिए हम आपका वेट कर रहे हैं. बोलिए. कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, विल हैव, वुड हैव, शैल हैव, शुड हैव, ऑट टू हैव, मस्ट हैव, नीड हैव. क्लियर है? आपको याद हो गया, हमें पता है. अब इसके साथ थर्ड फॉर्म लेनी है. अब थर्ड फॉर्म आप चाहे तो कोई भी एक सिंपल सा थर्ड फॉर्म लेके सभी में आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए एक साथ.
यदि हमारे दिमाग में एक साथ सारे वर्ड्स यदि ग्रामर के होंगे तो हम एक साथ कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, मतलब हमारे माइंड में इमीडिएटली होना चाहिए। तो लेते हैं, ही कुड हैव रिटन अ स्टोरी। ही कुड हैव रिटन अ स्टोरी। ही कुड हैव के बाद ही मे हैव बदल लीजिए, ही मे हैव रिटन अ स्टोरी। माइट हैव बदल लीजिए, ही माइट हैव रिटन अ स्टोरी। विल, he will have written a story। would, he would have written a story। would के बाद होता है shall। shall का यूज हम करेंगे I के साथ, I shall have written a story। should, he should have written a story। he ought to have written a story। he must have written a story। he need have written a story। क्लियर है? एक बार और प्रैक्टिस आप करें। अब आप करके मुझे दिखाइए, कीजिए स्टार्ट हमारे साथ। यस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, इसी है सबसे बड़ी बात है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अभी तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। हम लोग यही तो करते हैं, हर बार समझ में सब आता है सर। रीडिंग कर लेते हैं, राइटिंग कर लेते हैं, लिसनिंग कर लेते हैं, पर परफेक्टली स्पीकिंग नहीं कर पाते। स्पीकिंग करते समय ग्रामर टाइम पे नहीं आती, वर्ड्स टाइम पे नहीं आते, क्या बोले, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बोलते हैं आप लोग। तो हमने उसका सॉल्यूशन निकाला कि यस, हम यदि उसकी प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस की जाए तो डेफिनेटली हम बोलेंगे और दुनिया सुनेगी। तो प्रैक्टिस करने के बाद हमने रियलाइज किया कि यस, हर बंदा जो प्रैक्टिस करेगा डेफिनेटली वो बनेगा और डेफिनेटली वो बोल पाएगा। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार ट्राई करें। एक बार ट्राई करने पर आप रियलाइज करेंगे कि यस यू कैन डू इट, डेफिनेटली यू कैन डू इट, देयर इज नो डाउट इट। यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू डिटरमाइन फॉर इट, एंड आई नो इट वेरी वेल दैट, and I practiced a lot, that's why I got this type of mastery, and I know that you will do practice, so you will get a mastery over it also. So you must try for it. It is very easy task, just go through it and go through the practice. So we are trying it again, just I am ready to help you. So I am doing practice and I am ready to help you, so you must start right now. So start now, okay? Again, she could have completed her work. She may have completed her work. She might have completed her work. She will have completed her work. She would have completed her work. She should have completed her work. Or I shall have completed my work. He would have completed his work. He must have completed his work. He need have completed his work. इस तरह से हमने देखा कि आपने प्रैक्टिस की और आप समझ पाए। वेल डन, नाइस, वेल डन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। सबसे बड़ी हम आपसे चाहते हैं कि 30 to 40 मिनट्स हमें आप दीजिए और आप परफेक्ट हो जाए। हमारी ऑनलाइन भी क्लासेस भी चल रही है। आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं आप उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मिस कॉल आपके लिए क्लास अरेंज करवा देंगे और कर लेंगे। हम आपकी क्लासेस लेने को तैयार हैं और क्लासेस चल रही है, तो आप एंजॉय कीजिए। और सबसे ज़्यादा है कि प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। आपके लिए कुछ टेक्निक्स ला रहे हैं जिसपे आपको सिर्फ बुक रीडिंग करके भी आप फ्लुएंट इंग्लिश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसके पहले हम ग्रामर का बेस कंप्लीट करवाना चाहते हैं एडवांस। इसके बाद जो अभी हैंड टू हैंड जो एक वीडियो और है, उस वीडियो में मैंने भी कहा था कि हमें वोकैब्स की प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, तो उसके लिए हमने बताया था कि 10,000 समथिंग वर्ड्स और सारे वर्ड्स ले रहे हैं। तो वो 10,000 की सीरीज इसके जस्ट बाद ही अभी हम लेंगे वीडियो में। मतलब इसके बाद जो वाला वीडियो होगा उसमें वही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, मतलब वर्ड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम अभी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो उसी का है, आप इसको वॉच करते रहिए, आप इंजॉय करेंगे। हमें पता है कि आप डीप नॉलेज लेना चाहते हैं और हम डीप नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आर यू रेडी फॉर इट? सो लाइक इट।